So, my dear students, you tell me that this chapter I am telling to you that this chapter is very much important for all of us. Actually, what happens? This chapter is very much important because this chapter you will study in class 12th also. So let us start with magnetic effect of electric current. What is this thing? So one thing I will tell to you that what is magnetic effect of electric current. प्यारे बच्चों, when we pass an electric current through a conductor, when we pass an electric current through a conductor, suppose this is the conductor, and suppose if you pass an electric current through this conductor, then what will happen? Try to understand. The current will flow along this conductor, and the direction of flow of electric current will be from positive terminal to negative terminal. So one thing I will surely tell to you all, that remember that the direction of conventional current will be from positive terminal to negative terminal through this conductor. It is observed that what happens when an electric current is passed through a conductor, a magnetic field is created around its vicinity, around its area, around its region. Clear? So the production of magnetic field around the region of this current carrying conductor is known as magnetic effect of electric current. So this is one of the effects of electric current. However, you would have surely studied about the heating effect of electric current in class 7 basics. Moreover, chemical effect of electric current in class 8 basics. And here basics we will study, fundamentals we will study about the magnetic effect of electric current. Means current produces three types of effects: heating effect, then after chemical effect of electric current, and here it is magnetic effect of electric current. So this is known as magnetic effect of electric current. Finally, I am telling to you the production of magnetic field around any current carrying conductor is known as magnetic effect of electric current. तो प्यारे बच्चों, इस चीज को आप समझ लीजिए। और अब हम लोग यहां पर ये जानेंगे कि भाई अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे उसके डायरेक्शन क्या होंगे। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स जो बनेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन जाएगा, यहां आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन जाएगा, ये एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसके आसपास चारों तरफ, उसके डायरेक्शन किधर होंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन किधर होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑर्स्टेड साहब ने बताया। सबसे पहले ऑर्स्टेड, किन्होंने बताया? ऑर्स्टेड, नाम लिख लीजिए, ऑर्स्टेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। एंड फाइनली one thing surely I will tell to you all, that Orsted remained
Oersted remained fail to find out the direction of magnetic field in this condition, in this case, in a current carrying conductor. तो Andre Ampere deduced a particular rule. What type of rule? To find out the direction of magnetic field along or around this current carrying conductor. So let us start. What happens? See, this is the direction of the current. This is the direction of the current. मान लो कि हम जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट इसमें चेंज कर देते हैं. सपोज वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फिगर. सपोज वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फिगर. अब क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर अब डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. कन्वेंशनल करंट का ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, कन्वेंशनल करंट. और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस करंट को कंस्टिट्यूट करने वाला जो एलिमेंट है, जो पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन्स है. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है. वो बात की बात है, उसकी चर्चा अभी हम यहां नहीं करेंगे. तो देखिए एम्पियर्स रूल क्या कहता है. एम्पियर्स रूल क्या कहता है, ठीक है ना. एम्पियर्स रूल क्या कहता है, हम कैसे इसके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. करना क्या है कि हम लोग यहां पर वी विल टेक अ पर्सन, एक आदमी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो कि इस वायर के अलोंग, ठीक है, इधर इसका जो हेड होगा वो इधर होगा, ठीक है, उसका जो हेड होगा वो इधर होगा, ठीक है ना. और इधर जो है उसका क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा. ध्यान से समझ लीजिए, रफ फिगर में बना रहा हूं. यहां पर तो ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर. यहां पर क्या है, एक आदमी है जो इस तरह से इसमें तैर रहा है, इस तरह से स्विमिंग कर रहा है कि करंट जो है उसके पैर को इंटर करता है और उसके माथे को लीव करता है. मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और करंट इंटर्स इनटू हिज फीट एंड लीव्स फ्रॉम हिज हेड. ये है कंडीशन भाई. दिस इज द कंडीशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द कंडीशन. व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा कि आप यहां पर एक नीडल रख दो, एक मैग्नेटिक कंपास रख दो, ठीक है ना. आप यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रख दो. तो एक चीज ध्यान देना यहां पर कि एम्पियर साहब ने बताया कि अगर इस कंडीशन में ये स्विमर अगर यहां पर स्विम कर रहा है तो जो मैग्नेटिक नीडल वहां रखे हुए हैं उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, आसपास, ठीक है ना, वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड के तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है. वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड के तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना. तो जेन्युइनली दिस इज द रूल. इफ द करंट इंटर्स इनटू हिज फीट एंड लीव्स फ्रॉम हिज हेड, देन the magnetic compass, the needle, the deflection of magnetic compass will take place always towards his left hand. Will take place always towards his left hand. तो अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है, यही है जेन्युइन रूल. तो यही है. अब इसी में जो है स्नो रूल है,
एक न्यूज वाला जो है कुछ बना करके आर्टिफिशियली इसी को थोड़ा सा जो है चेंज किया गया है, तो वो सब ध्यान नहीं देना है। आप इस चीज को ध्यान दो कि व्हाट इज एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल स्टेट्स दैट इफ अ करंट enters into the feet of a person and leaves from his head, then the direction of the magnetic compass will take place towards his left hand हमेशा। अब अगर तुम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हो, इसके पोल को चेंज कर दो, इसके टर्मिनल को चेंज कर दो, अब आप इसके सेल के बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दो, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी इसमें उलट जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाएंगे। तो फिर रूल वही रहेगा, रूल नहीं बदलेगा। करंट हमेशा उसके फीट की तरफ इंटर करेगा और उसके माथे की तरफ से वो करंट निकलेगा और निडल का डिफ्लेक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ठीक है ना, निडल का डिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो देखो ओवरऑल एम्पियर्स रूल क्या है कि इफ करंट enters along the feet of a swimmer and it leaves from his head, then the direction of magnetic compass deflection, that is north pole will always deflect towards his left hand, always towards his लेफ्ट हैंड। ठीक है ना बच्चों, देखिए इस चीज को अच्छे से थोड़ा। तो राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एम्पियर स्विमिंग रूल। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो फाइनली my dear students, I will tell to you one thing surely, that how can we understand about the, can I tell you? Yes, how can I understand about the magnetic field and magnetic field lines? Very interesting. Before that, we should understand about a magnet. You remained very much familiar with a magnet. Genuinely, this is a magnet, and suppose here it is the north pole and here it is the south pole. This is the north pole and this is the south pole of this magnet. Suppose north and south pole never remain at the ends of a magnet. I am talking about a rectangular bar magnet, or even in a horseshoe shaped magnet also, the poles remain a little bit inside the magnet. Suppose this is the length, this is the magnetic length of the magnet. This is the magnetic length of the magnet, and this is the geometrical length. This is the geometrical length of the magnet. Magnetic length of magnet, then after geometrical length
of magnet. This is the geometrical length of the magnet. This is the magnetic length of the magnet. Clear? So बच्चों, let us see that how can we understand more about magnetic length of a magnet and geometrical length of a magnet. So all of you try to understand. Suppose we have one magnet. This is rectangular bar magnet or rectangular magnet simply. Here it is north pole, here it is south pole. This length is called magnetic length of the magnet, Lm, magnetic length of the magnet. And this is called geometrical length of the magnet. See, and there is a relationship in between, what? Magnetic length and geometrical length of this magnet. So try to understand. Magnetic length of a magnet becomes always equal to 5/6 times of the geometrical length of the magnet. 5/6 times of the geometrical length of the magnet. Is it clear, बच्चों? Clear. So this is also one of the best example. This is also one of the most important example and information for you all. So one thing I will tell you all, that try to understand that what is magnetic field and what is magnetic field lines or simply field lines or magnetic lines of force, बच्चों. The other name of magnetic field lines is magnetic lines of force. Do you know? This is very important. So try to understand what can we say about this thing. तो देखो बच्चों, पहले तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं. ऑरली डिफाइन कर देता हूं. ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कि हम उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो या बहुत ज्यादा उसके लिए जो है कैसे याद करेंगे वगैरह वगैरह. ये सब सोचने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना बच्चों? अच्छी बात है. देखिए, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि रीजन अराउंड अ मैग्नेट, where the region around a magnet up to where this magnet exerts a magnetic force is called its magnetic field. ये मैग्नेट अपने चारों तरफ स्पेस में, ठीक है, ये अपने चारों तरफ स्पेस में, ठीक है ना. अगर आप मैग्नेट को यहां रख दो, ऐसे हैंग कर दो धागा से, यहां पर आप ऐसे इसको हैंग कर दोगे ना, तो ये अपने चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी डायरेक्शंस में, इन ऑल द डायरेक्शंस, ये एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा एक खास स्पेस में, एक खास रीजन में, एक खास जगह तक. उस जगह को जहां तक ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा सकेगा, दैट रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर बच्चों? अच्छी बात है. देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. Magnetic field lines are one of the best things to understand for those students who are studying in standard 10 or in 12th. Clear? Or even for those students who are preparing for foundation. तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग. ठीक है ना? देखो, समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है. तो देखो बच्चों, हम कैसे इसको समझ सकते हैं ये जान लेते हैं. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये.
देखो बच्चों, होता क्या है ना कि किसी भी मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। ये होता क्या है ना, जेन्युइनली इसके आसपास का एक लाइंस होता है। इसको समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है, कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, मान लो कि ये हमारा एक मैग्नेट है, ये एक हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है और रेक्टेंगुलर मैग्नेट है। आप इसके नॉर्थ पोल के पास एक मैग्नेटिक कंपास रख दीजिए या एक नॉर्थ पोल रख दीजिए, ठीक है। आप देखोगे क्या कि यहां से चलते हुए ये इधर पहुंच जाता है। आप यहां पर नॉर्थ पोल रखते हो, मान लो कि ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, और यहां पर आप रखते हो तो कुछ इस तरह का हमें डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलता है। और फिर आप यहां से उठा लीजिए मैग्नेटिक कंपास को और इसका जो हेड है वहां पर एक पॉइंट लगा दीजिए, फिर इसको यहां लगा दीजिए, फिर ये नीडल ऐसे ही हो जाएगा। और ये ऐसे चलते चलते हम देखते क्या है बच्चों कि ये यहां से निकल करके ये इस तरह से यहां चलाता है और वही चीज यहां भी रिपीट होता है, यहां पर भी ये वही चीज बनता है। और इस तरह से जो है बहुत सारे लाइंस बन जाते हैं यहां पर बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने यहां पर बना दिया, ठीक है। अच्छी, और देखो बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है ना, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है। क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि हमने अभी यहां पर मैग्नेटिक कंपास रख करके देख लिया था कि इसका डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, तो ये तो हम लोगों ने समझा, ठीक है ना बच्चों। देन आफ्टर क्या होगा कि जब अब ये ऐसे चल रहा है तो कंपास में, तो मैग्नेट में कैसे चलेगा भाई? तो मैग्नेट में तो ये ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा ना। मतलब कहने का है माय डियर स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ सेइंग दिस ऑल द थिंग्स इज the magnetic field lines always starts from north pole and ends into its south pole. Moreover, outside the magnet, moreover, inside the magnet, the direction of magnetic field line takes place from south to north, from south to north. तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो बच्चों, यहां पर कुछ बात है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है वो सभी बातें? तो वो बातें ये है कि राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसको पहले आप तो my dear students, write few characteristics of magnetic field lines और magnetic lines of force। तो आप देखो इसको ध्यान से, क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप इस as you will go ahead from this magnet, if you will go ahead from this magnet, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट कमजोर होता चला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम होता चला जाएगा।
और 3-4 कंप्लीट लूप बनाने के बाद या कुछ लूप्स बनाने के बाद उसके बाद वो लूप जो है पूरा नहीं होंगे। वो लूप क्या होंगे? पूरा नहीं होंगे, वो ऐसे ही रह जाएंगे। ये देखो मैं कुछ बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये लूप्स कुछ इस तरह से ही रह जाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाते हैं। तो कुछ कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट व्हाट the direction of magnetic field lines start from north pole and ends into south pole outside the magnet, but inside the magnet the direction of magnetic field lines take place from south to north pole। एक काम खत्म हुआ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इस मैग्नेट से अवे जाते हैं, इस मैग्नेट से दूर चले जाते हैं, इस मैग्नेट से फार चले जाते हैं, अवे चले जाते हैं, वैसे वैसे ये फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट होना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है धीरे धीरे कम रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी कम जाएगा। नहीं समझे? बहुत आसान है समझना। देखो जैसे कि तुम मान लो यहां से अगर अभी इस चौक को गिराते हैं तो ये नीचे गिर जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां तक से कोई बॉडी जमीन पर आ जाएगी वो वहां तक का जगह ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड से ऊपर जैसे जाते हैं तो वो बॉडी वहां से नीचे नहीं आती है बच्चों। मतलब वो बॉडी अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। वैसे ही जैसे ही हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चलते चले जाएंगे, धीरे धीरे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स घटता चला जाएगा और हमको क्या होगा? एक कंप्लीट लूप देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। तो ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बातें, और भी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो गया बच्चा। inside the magnet the magnetic field lines become completely straight होते हैं बच्चों। यहां पर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो भाई मैग्नेटिक फोर्स जो है यहां मैग्नेट के ही पास, मैग्नेट के अंदर उभी की बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्ट्रेटर, ये स्ट्रेट हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और ये है भी रियल। क्यों? कि इफ यू विल प्लेस, अगर इंटरसेक्ट, अच्छा एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, यू टेल मी वन आंसर। द क्वेश्चन इज दिस, दैट if you have a magnetic compass and you having that magnetic compass anywhere, is it possible that at that same instant of time or at that very moment that magnetic compass will show two directions, will deflect in two directions? Is it possible? No. The needle will always point towards north and south direction only. क्लियर? तो इफ इट वेयर, अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो समझ लो, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तभी काटेंगे एक दूसरे को, टू और मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर ओनली, एंड इफ द मैग्नेटिक कंपास, द मैग्नेटिक नीडल shows or represents the two different directions at the same time, that is not possible. That's why we can say that magnetic field lines never intersect to each other. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हम यहाँ पर अब एक जो है
एच.सी. वर्मा सर का और आर.डी. शर्मा साहब का जो है बुक्स से, किताब से आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं। उससे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो कि जी एस्पिरेंट्स जो हैं और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन का कोर्स होगा वो, और ये 9th से लेकर के 12th तक के बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये फुल्ली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। इसके लिए आप हमारे आंसर्स को समझना चाहोगे, हमारे क्वेश्चंस को जानना चाहोगे, तो आपको थोड़ी तैयारी करके आना होगा हमारे क्लास में बच्चों, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, और यही हमारा उद्देश्य होगा। ये चीजें होंगी वैसे बच्चों के लिए जो कि फिलहाल 9th से लेकर के 12th तक में पढ़ रहे हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑल ऑफ यू एंड ट्राई टू हैव द बेस्ट मार्क्स, बिकम ए रैंकर। होप सो। विथ दिस गुड वर्ड्स एंड विशेस I am leaving you here. So thank you. Shortly I will meet in the next class. Thank you all of you.